شہر شہر گاؤں گاؤں کے سفر کا آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو ایک خبر دیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ احسن یونس کو آئی جی اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حماد اسلم سے۔ جی حماد، آگاہ کیجیے گا۔ حماد اسلم سے تفصیلات جانیں گے، لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ احسن یونس کو آئی جی اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے۔ اس اہم تبدیلی سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ احسن یونس کو آئی جی اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے۔ اس اہم تبدیلی سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ احسن یونس کو آئی جی اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور احسن یونس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ احسن یونس کو آئی جی اسلام آباد تعینات کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں حماد اسلم سے۔ جی حماد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ڈی آئی جی آپریشنز احسن یونس کو تبدیل کر کے وفاق نے احسن یونس کو آئی جی اسلام آباد لگا دیا ہے، اور سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ایک مراسلہ جاری ہوا تھا جس میں روٹیشن پالیسی کے تحت متعدد افسران کو پنجاب میں 10 سال سرو کرنے کے بعد مختلف صوبوں میں بھیجنا عمل شروع ہو چکا تھا۔ تاہم اسی روٹیشن پالیسی کے تحت متعدد افسران تبدیل ہو چکے تھے، لیکن جو ان کے حوالے سے کے پی کے کا ایک لیٹر جاری ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی خدمات اب کے پی کے میں جا کے سر انجام دینی ہے، جس کے بعد اب ان کو اسلام آباد میں آئی جی تعینات کر دیا گیا، اور جو نئے ڈی آئی جی آپریشن ہے اس حوالے سے اب جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حماد اسلم تفصیلاً بتا رہے تھے۔ پیٹرول چینی آتنک کے بعد اب کھاد کے لیے بھی لائنیں لگ گئی۔ الہ آباد اور گردونواں میں کسان کھاد کے حصول کے لیے رل گئے۔ کسان کھیت کی بجائے کھاد دکان کے باہر لمبے قطاروں میں لگے ہیں۔ گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ قصور کے علاقے الہ آباد اور اس کے گردونواں میں کسان کھاد کے حصول کے لیے رل گئے۔ کسان سارا دن دکان کے باہر کھڑے گزارنے پر مجبور ہیں۔ کئی کسانوں کو کھاد ختم کا کہہ کر اگلے روز آنے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کھاد کہیں سے نہیں مل رہی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ کسان کارڈ پر فی کسان 10 بوریاں دی جائیں گی، لیکن صرف 2 بوریاں ہی مل رہی ہیں۔ کھاد کی عدم فراہمی پر گندم کی کاشت متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ عدم فراہمی پر کسانوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جہانیہ میں بھی کسان کھاد حاصل کرنے کے لیے دربدر ہونے لگے۔ کسانوں نے ظفر اللہ چوک پر احتجاج کیا۔ کسانوں نے الزام لگایا کہ کھاد مافیا کنٹرول ریٹ کی بجائے من پسند افراد کو بلیک میں کھاد فروخت کر رہا ہے۔ متعدد شکایات کے باوجود انتظامیہ کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ لیا میں نئی تعینات ہونے والی تاریخ کی پہلی خاتون آفیسر نے بطور ڈی پی او لیا چارج سنبھال لیا۔ پی ایس پی خاتون آفیسر ندا عمر چٹھا کی بطور ڈی پی او لیا پہلی تعیناتی ہیں۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے کی نئی تعینات ہونے والی ڈی پی او کو سلامی دی۔ ڈی پی او نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول چڑھائے۔ ڈی پی او ندا عمر چٹھا اس سے پہلے کمانڈر بٹالین پی سی 1 لاہور تعینات تھی۔ لیا میں نئی تعینات ہونے والی تاریخ کی پہلی خاتون آفیسر نے بطور ڈی پی او لیا چارج سنبھال لیا۔ پی آئی اے نے سعودی عرب کی مزید پروازوں کے لیے اجازت حاصل کر لی۔ پی آئی اے نے ہفتہ وار 33 سے بڑھا کر 48 پروازیں کر دی ہیں۔ سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر جنرل بلال اکبر نے اضافی پروازوں کے لیے پی آئی اے کی معاونت کی۔ دمام اور مدینہ کی 8 اور ریاض اور جدہ کی 23 پروازیں شامل ہیں۔ پروازوں کا مقصد کووڈ پابندیوں میں نرمی کے بعد پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار پر واپس پہنچانا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف لاہور ایاز شجاع سے۔ جی ایاز شجاع، آگاہ کیجیے گا۔ پی آئی اے نے سعودی عرب میں چونکہ سب سے زیادہ ہمیں وہاں سے ریمیٹنس آتی ہے، اس لیے سعودی عرب میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے کے لیے سعودی حکومت سے زیادہ سے زیادہ پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت لی ہے۔ اب یہ پروازیں 33 سے بڑھا کے 48 کر دی گئی ہیں۔ یہ پاکستان سے ہفتہ وار 48 پروازیں سعودی عرب سے آپریٹ کرے گی۔ ان میں 8 دمام، 8 مدینہ، 9 ریاض اور 23 جدہ کے لیے ہوگی۔ پروازوں کا مقصد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو جانا ہے تاکہ وہ اپنے زیادہ کاروبار کے سلسلے میں جو وہاں وہ وہاں پر پہنچ سکے، اور کووڈ پابندیوں کی وجہ سے جتنے پاکستانی یہاں پاکستان میں رک گئے تھے وہ وہاں پر پہنچ سکے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ یا شجاع اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ میڈیکل کی طالبان نوشین کاظمی کی پراسرار موت واقعے کی تحقیق کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مزید جانتے ہیں دادو سے ارباب علی کی رپورٹ میں۔ میڈیکل کی طالبہ ڈاکٹر نوشین کاظمی کی پراسرار موت تحقیقاتی اداروں کے لیے چیلنج۔ 13 روز گزرنے کے بعد بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔
वाक़या की शफाफ तहकीकात और बुरसा को इंसाफ फराहम करने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में तालिबा नौशीन के वालिद सैयद हदायतुल्लाह शाह और समाजी अफराद समेत शहरियों ने शिरकत की। तादू की सिविल सोसाइटी ये चाहते हैं कि मुनसिफाना जांच होनी चाहिए और उस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जो किरदार हैं या कि जो मुलवस लोग हैं उनको कानून के कटहरे में ला के उनको सज़ा दी जाए। हम पुरजोर हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर नौशीन काज़मी के साथ इंसाफ किया जाए। बुरसा शहरियों का कहना था कि ऐलानात के बावजूद वाक़े पर JIT नहीं बन सकी। वाक़े की अदालती जांच करके असल किरदारों को बेनकाब करके सजा दी जाए। अरबाब अली, न्यूज़ दादू। कोयटा शहर में सिरकी रोड पर इंतजामिया की जानिब से रोड के दरमियान खंबे लगा दिए गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि इदारे सही से काम नहीं कर रहे। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद खान काकड़ से। जी मोहम्मद खान काकड़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा के सुर्खी रोड पर। यह कोयटा का एक मसरूफ़ तरीन शारा है जहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पर इस रोड पर जो है ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की नाकिस कारदगी दे के या नाकिस प्लानिंग दे के हमारे कैमरामैन अहमद नईम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो है रोड के बीचों बीच जो है इंतज़ामिया की जानिब से खंबे लगाए गए। इस खंबों की वजह से ना बल्कि ट्रैफिक मुतासिर हो रही, बल्कि यहाँ पे शहरियों का कहना था कि इसकी वजह से जो है यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं। और रात के टाइम चूँकि लोगों को मालूम नहीं है कि इस रोड पर जो है खंबे लगाए गए रोड के बीचों बीच, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। तो शहरियों का मुतालबा है हुकूमत से कि इस खंबों के लिए जो हुकूमत एक प्रॉपर प्लानिंग करें ताकि यहाँ पे लोग जो है और शहरी जो है किसी भी नुकसान से बच सके। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में सुई गैस की गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है। शहरियों को एक तरफ गैस न आने की परेशानी है तो दूसरी तरफ मुतबादिल ज़राए की कीमत में इजाफा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग जारी। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे ही गैस आना भी बंद हो रही है। एबटाबाद में शहरी इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम हो गया। डेरा गाजी खान में प्रेशर कम होने के साथ गैस न आने की शिकायत भी है। लाहौर, फैसलाबाद, शुजाबाद और सरगोदा में भी गैस की अदम फराहमी के बायस घरों में खाना पकाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए भी महंगे हो गए। LPG लकड़ी की कीमत में भी इजाफे से अवाम रुल गए। दोपहर को गैस होती है ना रात को गैस होती है। LPG गैस ले नहीं सकते हम, उसकी भी कीमतें आसमानों को छू रही हैं। मिडिल क्लास लोग और हम जैसे गरीब लोग तो बड़े तंग हो रहे हैं। तो खासा मेहरबानी करें, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता तो बराए मेहरबानी चले जाएं आप। शहरियों का कहना है कि गैस नहीं दी जा सकती तो मुतबादिल ज़राए की कीमत को कंट्रोल किया जाए। में लुंडा बाजार को गरीबों के लिए नेमत बाजार समझा जाता था, मगर अब लुंडा बाजार में कोई गाहक दिखाई नहीं देता। महंगाई की वजह से दुकानदार भी परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं मदनी खान। जी बिल्कुल, सर्दियां शुरू होते ही पंजाब के तकरीबन हर शहर के अंदर एक बाज़ार कायम किया जाता है, लंडा बाज़ार, जिस बाज़ार के अंदर मुनासिब जो चीज़ें हैं वो दस्तयाब होती हैं, जिससे गरीब तबका जो लोग हैं वो चीज़ें ख़रीद कर अपनी सर्दियों को गुजारा करते हैं। इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला के लंडा बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ की क्या सूरत हाल है? एक तो मुझे यहाँ कोई गाहक नज़र नहीं आ रहा। दुकानदार एक हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उससे हम बात करते हैं। बिल्कुल इवें गाल है, पिछले साल को ढेर सारा पर के कोई कारोबार क्या नहीं, कोई चीज़ क्या नहीं। जरा गाह की आंदे खाली चला वेंदे। जरा बूट पिछले साल 50 दा मिलते उसा को 150 दा मिले पे। हुण असा क्या रेट बिचू डावी तो असा भी रोजी रखनी है, कोई कारोबार क्या नहीं, कोई तरीका क्या नहीं। हुकूमत को चाहिए कि जो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई है उन पर कंट्रोल किया जाए ताकि आम शहरी भी अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सकें। डेरा बुगटी में महंगाई से गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ने लगे। टमाटर 160 रुपये और मुर्गी का गोश्त 460 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद जानते हैं फैज़ बुगटी से। जी बिल्कुल, तेल महंगा होने की वजह से इस टाइम जो है ना सब्ज़ी और दाल और तमाम खाने पीने की अशिया की चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी हैं। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ सब्ज़ी वाली दुकानों पे गए हैं, उनसे बातचीत की है, वहाँ रेट मालूम किया है। तो टमाटर इस वक्त जो है ना डेरा बुगटी में 160 से 140 रुपए के तक जो है ना फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मुर्गी की जो कीमत है वो 450 से 440 रुपए के दरमियान तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि आवाम इस टाइम जो है काफ़ी परेशान है। उन्होंने कहा है कि हमने तब्दीली सरकार को वोट दे के लाए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो गरीब आवाम के ऊपर जुल्म करता रहे। जबकि इसके अलावा चीनी जो है ना 110 से 120 रुपए किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ एशिया की जो कीमतें हैं वो काफ़ी आसमान तक पहुँच चुकी हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन चीज़ों को जो है कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी जो है ना वो सुकून से खा सके। जी
बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी के घर बनाने का ख्वाब भी छीन लिया। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। चंद माह में सरिया, सीमेंट और बिजली की कीमतों में 50 से 60% इजाफा हुआ है। मजीद जानते हैं सराय आलमगीर से अमजद शाह से। जी अमजद शाह, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, महंगाई ने हर शुबा है ज़िंदगी को मुतासर करके रख दिया है। हर आदमी का ख्वाब अपना घर होता है। अब अपना घर बनाना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो बिल्डिंग मटेरियल है उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। 4 से 5 माह के अंदर जो बिल्डिंग मटेरियल है उनकी कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। अगर सीमेंट की बात की जाए तो आज से कुछ माह पहले सीमेंट की कीमत जो एक बोरी की थी वो 540 से 50 रुपये तक थी, और अब जो सीमेंट की एक बोरी है वो 720 से 740 रुपये तक मिल रही है। दूसरी तरफ जो मजदूर हैं वो शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जबकि मजदूर की मजदूरी आज भी 800 से 1000 रुपये तक है, जिससे में उसका गुजर बसर इंतहाई मुश्किल है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत महंगाई की तरफ तवज्जो दे, बिल्डिंग मटेरियल की कीमतों में कमी लाई जाए और मजदूर की मजदूरी बढ़ाई जाए, ताकि अपना घर का ख्वाब रखने वाले लोग अपना घर बना सके और मजदूर अपनी मजदूरी लेकर अपना गुजर बसर कर सके। जी, 4 सद्दा में हल्का N23 और PK56 की सीट पर इलेक्शन लड़ने वाले तहसील तंगी के रहायशी उमरा खान एडवोकेट इस बार इलेक्शन कमीशन की 50,000 रुपये दाखिला फीस की इस्तात न रखने की वजह से विलेज काउंसिल की सतह पर इंतखाबात में जनरल सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उमरा खान एडवोकेट जहां अकेले कैंपेन कर रहे हैं, वहीं मजदूरों की तरह सीढ़ी उठाकर बैनर्स और पोस्टर्स भी लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा नसरुल्लाह खटक उनके साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त जिला चारसदा के इलाका तहसीली तंगी में। यहाँ पर मेरे साथ एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा है जो माजी में कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा है। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इस बार इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवार के लिए जो चार्जेस दाखिले के लिए रखे थे, तो वो एक गरीब तबके और मजदूर तबके के लिए बहुत मतलब महंगा पड़ता था। मतलब 50,000 रुपये चार्जेस, ये हमारे बस की बात नहीं। ये दाखिले के 50,000 रुपये की बात नहीं थी। इसके अलावा इलेक्शन कैंपेन पे जो खर्च आता है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कह रहा था कि मैं भी दीगर उम्मीदवारों की तरह तहसील मयरशब पर इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से दाखिला फीस 50,000 रुपये था, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। करक में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी, उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए रैलियों और जलसों का सिलसिला जारी है। नेबरहुड कौंसल तपी से किसान कौंसलर हबीब जहान की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्होंने अपने इंतखाबी निशान हाथ रेडी को उजागर करने के लिए कसीर तादाद में रेडी बानों ने शिरकत की। ढोल की ताप पर रैली इलेक्शन ऑफिस से शुरू हुई और बाजार का चक्कर लगाया। किसान कौंसलर उम्मीदवार का कहना था कि गरीब इंसान हूँ, कामयाब होकर गरीबों के लिए दिन रात एक करके खिदमत करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर हैं। उम्मीदवारों और सियासी जमातों के कारकुनों ने वोटर्स की सपोर्ट हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। शहरियों ने भी बल्दियाती इंतखाबात से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। मजीद जानते हैं शाहिद खान से। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात के दिन करीब आते ही जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो उरूज पर है। हर जगह पर जो कैंडिडेट्स हैं उनके पोस्टर और फ्लेक्स जो है वो आवेज़ा किए गए हैं। अभी आवाम को क्या तवक्कुआत है बल्दियाती इंतखाबात से बात करेंगे। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है। जैसे आपको पता है, पहले भी हमारे नाजिम रह चुके हैं, जैसे कौंसल रह चुके हैं, सब लोगों ने काम किया हुआ है, ये नहीं कि नहीं किया हुआ है। और इंशाल्लाह अभी इस दफ़ा भी हम तवक्को रखना चाहते हैं कि ये हमारे काम करें, क्योंकि नाजिम और नाब नाजिम जो है ना पहले करते थे, मगर अब देखो ये लेवन है बाबा, हम इसको कहते हैं, इससे उस साइड पे, और ये जो नीचे एरिया इससे नीचे, इधर तो गैस नहीं होता। आवाम के जो छोटे लेवल के मसले हैं वो अपने मकामी जो नुमाइंदे हैं वो आसानी के साथ हल कर सकेंगे, और इनको जो आम बंदा है उनको रसाई मिल जाएगी छोटे मसले हल करने के लिए एक जिम्मेदार शख्स तक। जी, खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात। पेशावर में प्रिंटिंग प्रेस के कारोबार भी खूब चमक उठे। पोस्टर्स, स्टिकर्स और फ्लैक्सेस समेत दीगर इंतखाबी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की कीमतों में 100% इजाफा हो गया है। पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी की रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन
इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर, उम्मीदवारों की जानिब से पोस्टर्स, स्टिकर्स और फ्लेक्स की तैयारियां तेज। प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार भी खूब चमक उठा, लेकिन इलेक्शन मटीरियल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। लास्ट ईयर जो हम पोस्टर बना रहे थे उसके मुकाबले में इस साल जो बना रहे ना तो एक के डबल है, मतलब डबल हो गया। प्रिंटिंग प्रेस के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कागज, स्याही, रंग और प्लास्टिक समेत दीगर सामान की कीमतों में इजाफा हो गया है क्योंकि डिमांड ज्यादा है। रूटीन में जो हमारे काम होते हैं वो तो जब इंपोर्ट होता है लिमिट में होता है, लेकिन अचानक इलेक्शन का काम आ गया तो वो मार्केट में डिमांड और सप्लाई के हिसाब है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इस वजह से लोगों ने रेट मौसमी तौर पे बढ़ाए हुए, पहले भी डॉलर की वजह से रेट बढ़ गए थे। प्रिंटिंग प्रेस मालिकान के मुताबिक आम दिनों की निस्बत कारोबार में तेजी आई है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। बल्दिया आला हैदराबाद के मुलाजमीन की हड़ताल शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। शहर में हर जगह कचरे के ढेर लगे हैं। ताफुन ने शहरियों का जीना दूभर कर रखा है। नासिर शेख की रिपोर्ट। कारपोरेशन हैदराबाद के मुलाजमीन की हड़ताल, शहर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। सिंध के बल्दियाती मुलाजमीन गुज़िश्ता 5 सालों से अपनी तनख्वाहें ट्रेजरी से कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरे सिंध के बल्दियाती इदारे इस वक्त बंद हैं, कोई काम नहीं हुआ। ये बल्दिया वालों की जो हड़ताल चल रही है, इन लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया, पूरा शहर जो है तबाह बर्बाद हो गया है। देखिए ये ताफुन फैला हुआ है। बल्दिया में रोजाना के कामों के सिलसिले में आने वाले शहरियों को भी परेशानी का सामना है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़ हैदराबाद। और यहाँ आपको बताएं कि सानिया मोटरवे ज्यादती के मरकजी मुजरिम आबिद मलिक की सजा के खिलाफ अपील लाहौर हाईकोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मुजरिम आबिद मलिक की जानिब से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं उमर हयात से। जी उमर हयात, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में सानिया मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुजरिम आबिद मलिक की सजा के खिलाफ अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और कल लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है इस मुजरिम आबिद मलिक की अपील पर समाअत करेगा। मुजरिम आबिद मलिक की जानिब से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है, जबकि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अरशद फारूकी की इस अपील को मुस्तरद करने से मुतल्लिक दलाइल देंगे। बहुत शुक्रिया, उमर हयात आगाह कर रहे थे। गैर कानूनी फिशिंग ट्रालर्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। माहीगीरों के मसाइल के हल के लिए डीजी फिशरीज के मरकजी दफ्तर को फील्ड फॉर कोयटा से गवादर मुंतकिल कर दिया गया है। गैर कानूनी ट्रालिंग रोकने के लिए महकमा फिशरीज और दीगर इदारों के एहलकारों का गश्त बढ़ा दिया गया है। माहीगीरों को समंदर में जाने के लिए टोकन सिस्टम का खात्मा कर दिया गया है। अब माहीगीर बगैर किसी इजाजत के समंदर में आ जा सकते हैं। गवादर में तमाम गैर जरूरी चेक पोस्टों का खात्मा कर दिया गया है। गवादर में हुकूमती अहकामात पर तमाम शराब खानों को बंद कर दिया गया है। कंटानी को मुकम्मल तौर पर जिला इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है। शेखुपुरा के रेलवे स्टेशन से मुल्हिका मसरूफ शाहराह रसूल नगर रोड के अतराफ लगाई बाढ़ इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गई। किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। रेलवे इंतजामिया को मुतअद्दिद मरतबा आहनी बाढ़ को हटाने या महफूज करने का कहा गया, मगर रेलवे हुकाम की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हो सकी। मजीद जानते हैं अली इमरान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा रेलवे स्टेशन से मुल्हिका इंतहाई मसरूफ़ तरीन शाहराह रसूल नगर रोड पर। इस रोड के इतराफ़ में जो है वो रेलवे स्टेशन में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले की रोकथाम के लिए लगाई गई बाढ़ जो है वो खस्ता हाली के बायस इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ हादसात रूनुमा होना जो है वो मामूल बन चुका है। इस जगह पर हादसे बहुत होते हैं, लिहाजा स्टेशन वाले मास्टर को भी, स्टेशन वाले को भी कहा कि इसका या रास्ता बंद किया जाए या वो इशारे लगाए जाए या मतलब इसके ऊपर कार्रवाई की जाए कि यह रास्ता बिल्कुल क्लियर किया जाए या रोड सही किया जाए। इस खतरनाक बाढ़ की रिपेयरिंग का या इसे यहाँ से रिमूव करने के लिए कोई रेलवे इंतजामिया की जानिब से इक़दाम नहीं किए जा रहे। जी शहर शहर गांव गांव का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़।